اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اعمال کی جزا اور سزا۔ انسان میں ایک عشق، درد، طلب، خلجان اور تقاضا ایسا ہے کہ اگر 100,000 جہان اس کی ملکیت میں آ جائے تو بھی اس کا دل آسودہ نہیں ہوتا اور وہ آرام نہیں پاتا۔ یہ عشق آشنا مخلوق ہر پیشہ، صنعت، منصب، علم نجوم اور طب وغیرہ کی تحصیل کے لیے کوشش کرتی ہے، لیکن اسے بالکل قرار نہیں آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا مقصد اسے حاصل نہیں ہوتا۔ معشوق کو اسی لیے تو دل آرام کہتے ہیں کہ اس سے دل آرام پاتا ہے، پھر اس کے بغیر عاشق کو کیوں کر قرار آئے۔ یہ سب مقاصد اور خوشیاں سیڑھی کی مانند ہیں، اور سیڑھی کے پایوں کی طرح کسی ایک جگہ ان کا قیام نہیں، ان کی حیثیت عبوری ہے۔ مبارک ہے وہ انسان جو جلدی سے جلدی بیدار اور واقف ہو جائے تاکہ طویل مسافت اس کے لیے مختصر ہو اور وہ سیڑھی کے پایوں ہی میں اپنی عمر ضائع نہ کرتے۔ سوال کیا کہ مغل ہمارا مال اڑا لے جاتے ہیں اور کبھی کبھی وہ بخشش میں مال ہمیں دیتے بھی ہیں، ان کا یہ طریقہ عجیب ہے۔ فرمایا مغل جو مال لے جاتے ہیں ایسا ہی ہے کہ وہ حق کے قبضہ اور خزانہ میں آیا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ تو دریا میں سے ایک سراہی یا مٹکا پانی بھر کے باہر لے آئے تو یہ پانی تیری ملکیت بن جاتا ہے۔ جب تک پانی سراہی یا مٹکے میں ہے اس پر کسی دوسرے کا تصرف نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی شخص تیری اجازت کے بغیر اس مٹکے میں سے پانی لے جائے تو وہ غاصب ہے، لیکن اس پانی کو پھر دریا میں ڈال دیا جائے تو یہ سب پر حلال ہو جاتا ہے اور یہ تیری ملکیت نہیں رہتا۔ بس ہمارا مال ان پر حرام ہے اور ان کا مال ہم پر حلال ہے۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، جماعت رحمت ہے۔ احادیث نبوی۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ جمعیت کے لیے کوشش فرمائی، کیونکہ ارواح کے اجتماع میں جو عظیم اثرات ہیں تنہائی اور علیحدگی سے وہ حاصل نہیں ہوتے۔ مسجدیں بنانے کا راز یہ ہے کہ محلہ کے لوگ اس میں جمع ہوں تاکہ رحمت اور فائدہ زیادہ ہو۔ گھروں کا جدا جدا ہونا تفریق ہے اور ان کے عیبوں کے لیے پردہ ہے، اور جامع مسجد کی بنا ڈالی تاکہ اہل شہر وہاں جمع ہوں، اور کعبہ کی زیارت اس لیے فرض کر دی گئی کہ دنیا بھر کے شہروں اور ملکوں سے خلقت وہاں جمع ہو۔ کہا کہ مغل جب پہلے اس ملک میں آئے تو ننگے اور برہنہ تھے، ان کی سواری گائے تھی اور جنگی ہتھیار لکڑی کے تھے۔ اس زمانہ میں وہ صاحب حشمت ہو گئے ہیں، بہترین عربی گھوڑے اور اسلحہ ان کے پاس ہیں۔ فرمایا کہ اس وقت وہ دل شکستہ اور کمزور تھے، ان میں طاقت نہ تھی، خدا نے انہیں طاقت دی اور ان کی عاجزی قبول کی۔ اس زمانہ میں جب کہ وہ اتنے محتشم اور قوی ہو گئے ہیں، خدا انہیں کمزور ترین مخلوق سے ہلاک کراتا ہے تاکہ انہیں معلوم ہو کہ وہ خدا تعالیٰ کی عنایت اور مدد تھی جس کی بدولت وہ دنیا پر چھا گئے۔ یہ ان کی اپنی قوت کا کرشمہ نہ تھا۔ پہلے یہ صحرا میں تھے، یہ دنیا سے دور تھے، بے نوا، مسکین، محتاج اور عریاں تھے۔ ان میں سے بعض لوگ تجارت کے لیے خوارزم شاہ کی سلطنت میں آئے اور انہوں نے خرید و فروخت کی اور اپنا تن ڈھانپنے کے لیے سوتی کپڑا خریدا۔ خوارزم شاہ مانے ہوا اور اس نے ان کے تاجروں کو قتل کیے جانے کے لیے فرمایا، ان سے خراج لیا اور سوداگروں کو وہاں داخلے کی ممانعت کر دی۔ تاتاری روتے پیٹتے اپنے بادشاہ کے پاس پہنچے کہ ہم ہلاک ہو گئے۔ ان کے بادشاہ نے ان سے 10 دن کی مہلت مانگی۔ پھر بادشاہ ایک غار میں گیا اور 10 دن روزہ رکھا اور نہایت خشوع و خضوع کیا۔ خداوند تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ ہم نے تیری آہذاری قبول کی، غار سے باہر آ، تو جہاں جائے گا فتح پائے گا۔ اس طرح وہ باہر نکلے، خدا کے حکم سے وہ فاتح بنے اور دنیا پر چھا گئے۔ کہا تاتاری قیامت کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ دادخواہی ہوگی۔ فرمایا وہ جھوٹ کہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں اپنی مشارکت ظاہر کریں، یعنی کہ ہم جانتے ہیں اور قائل ہیں
एक ऊंट से लोगों ने पूछा, तू कहां से आया है? उसने जवाब दिया, हमाम में से। कहा, ये तेरी एड़ी ही से जाहिर है। अब अगर ये लोग कयामत के कायल हैं तो इसकी इलामत और निशानी क्या है? उनके ये गुनाह, जुल्म, बदी मुंजमद बर्फ की तरह हैं, जिसकी तह पर तह चढ़ी हुई है। खुदा तरसी के जहान से जब अनाबत और पशेमानी का आफताब तुलू होता है तो गुनाह की सारी बर्फ पिघल जाती है, क्योंकि आफताब मुंजमद बर्फ को पिघलाता है। अगर मुंजमद बर्फ ये कहे कि मैंने आफताब को देखा है, आफताब ने मुझे हिद्दत पहुंचाई और गर्म किया है, और इसके बावजूद बर्फ वैसी की वैसी मुंजमद है, तो कोई अक्लमंद इसे बावर नहीं करेगा। ये नामुमकिन है कि आफताब चमक को गर्मी पहुंचाए और बर्फ ना पिघले। अगरचे खुदावंद ताला ने वादा कर रखा है कि वो नेक और बद की जजा कयामत को देगा, लेकिन उसका नमूना लहजा ब लहजा और दम बदम यहां मिलता रहता है। अगर किसी इंसान के दिल में खुशी की लहर उठती है तो ये इस बात की जजा है कि खुद उसने किसी को खुश किया है, और अगर कोई इंसान गमगीन होता है तो उसने जरूर किसी को गमगीन किया है। ये तोहफे इस जहान के हैं और रोजे जजा और सजा के आईनादार हैं, ताकि लोग इस बात से उस ज्यादा बात को समझ सकें। इसकी मिसाल यह है कि गंदम के ढेर में से सिर्फ मुट्ठी भर दाने ही दिखाए जाते हैं। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस अजमत और बुजुर्गी के बावजूद जो उन्हें हासिल थी, एक रात हाथ में दर्द हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई कि ये दर्द उस दर्द की तासीर है जो हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ को उस वक्त हुआ था जब उन्हें असीर किया गया और बाकी कैदियों के साथ उनके हाथ बांध दिए गए थे। और अगरचे हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथों का बंदा खुदा के हुक्म के मुताबिक था, उसकी जज़ा तुझे दी गई ताकि तुझे मालूम हो कि ये इनकेबाज, तहरगी और रंज जो तुझे पहुंचते हैं इस दिल आजारी और मासियत की वजह से हैं जो तूने की, मगर जिसकी तफसील तुझे याद नहीं रही कि तूने क्या क्या कुछ किया। लेकिन ये उसकी जजा है कि तूने बुरे काम बहुत किए जिनका तुझे इल्म नहीं। वो बुरे काम तूने गफलत या जहालत की वजह से किए, या किसी बेदीन दोस्त ने उन्हें तुझ पर आसान कर दिया कि तू उन्हें गुनाह नहीं समझता। जजा को जो तुझे मिल रही है देख और गौर कर के तेरे दिल में कितनी कुशाद है और कितना कब्ज। हर हालत में गुनाह की सजा है और कुशाद बंदगी की जजा है। हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर महज इस वजह से अताब हुआ था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उंगली की अंगूठी घुमा रहे थे। इरशाद बारी ताला था, मैंने तुझे बेकारी और खेल के लिए पैदा नहीं किया, क्या तुम इस ख्याल में हो कि हमने तुम्हें बेकार पैदा कर दिया है? सूरह मोमिनून। इसी से कयास करके तेरा दिन गुनाह में गुजरता है या बदतगी में। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दुनिया में मशगूल कर दिया, अगरचे ये अम्र हक था और वो हक ही में मशगूल थे, ताहम उन्हें कुछ वक्त दुनिया में मशगूल कर दिया। ये मसलहत की बिना पर था। और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को बकुल्ली अपने आप में मशगूल कर दिया और खुद हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहले बिल्कुल अपने आप में मशगूल कर दिया और बाद में उन्हें हुक्म दिया कि दुनिया को दावत दे, नसीहत कर और इसकी इस्लाह कर। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आहुजारी की कि या इलाही, मुझसे क्या गुनाह सरजद हो गया जो मुझे अपनी हुजूरी से अलहदा कर रहे हो? मुझे दुनिया की जरूरत नहीं। खुदावंद ताला ने फरमाया, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बिल्कुल गम न खा, तुझे मैं नहीं छोड़ दूंगा कि तू दुनिया में मशगूल था। तू ऐन दुनिया की मशगूलियत में मेरे साथ होगा। तू इस वक्त जितना मेरे करीब है, दुनिया में मशगूल हो जाने के बाद इससे सरे मुंह मुझसे दूर ना होगा, बल्कि इतना ही करीब रहेगा। तू ख्वाह कोई काम कर रहा हो, मुझसे ऐन वासिल रहेगा। सवाल किया कि क्या रोजे अजल के सादिर शुदा अहकाम और खुदावंद ताला की तकदीर बदल सकती है? फरमाया कि अजल के दिन खुदावंद ताला ने जो ये हुक्म दिया कि बदी का बदला बदी और नेकी का बदला नेकी होगा, ये हरगिज तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि खुदावंद ताला हकीम है। वो कैसे कह सकता है कि तू बदी कर ताकि उसका बदला
तुझे नेक मिले। कोई गंदम बोकर जौ काटे या जौ बोकर गंदम काटे, ये कभी मुमकिन नहीं हुआ। और सब औलिया और अंबिया ने यही कहा है कि नेकी की जज़ा नेकी है और बदी का बदला बदी है। जिसने राई के दाना के बराबर भी नेकी की है वो उसे देख लेगा, और जिसने राई के दाना के बराबर बदी की है वो उसे देख लेगा। सूरह ज़िलज़ाल। अगर तो हुक्म अज़ली से ये चाहता है कि हम बात करें और शरह कर दें, हमसे ये हरगिज ना होगा, माज़अल्लाह। और अगर तू चाहता है कि नेकी और बदी की जज़ा बढ़ जाए और ऐसा हो जाए, यानी तू जितनी नेकी ज्यादा करे नेकियां बढ़ जाएं, और जितना जुल्म करे बदियां बढ़ जाएं, ये हो सकता है, लेकिन असल हुक्म तब्दील नहीं होगा। एक फसाल ने सवाल किया, हम देखते हैं कि एक शक्की इंसान सईद बन जाता है और सईद इंसान शक्की बन जाता है। फरमाया कि आखिर इस शक्की इंसान ने नेकी की या नेक बातें सोची तो वो सईद हुआ, और वो सईद इंसान जो शक्की हुआ उसने बदी की या बदी की बातें सोची तो वो शक्की हुआ। इसी तरह इब्लीस ने आदम के हक में इतराज किया था कि मुझे तूने आग से पैदा किया और इसको खाक से। सूरह इराफ। इसके बाद वो के मलाइका का उस्ताद था अबदी मलून हो गया और रांदाए दरगाह ठहरा। हम भी यही कहते हैं कि नेकी का बदला नेकी है और बदी की जजा बदी है। सवाल किया कि किसी शख्स ने नजर मानी कि फला दिन रोजा रखेगा, अगर वो उसे तोड़ दे तो उस पर कफारा वाजिब हुआ या नहीं। फरमाया कि शाफई मजहब के एक कौल के मुताबिक कफारा लाजिम आया। इसकी वजह यह है कि नजर को सौगंध समझ, और जिसने सौगंध को तोड़ा उस पर कफारा लाजिम आया। लेकिन इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक नजर बेमानी सौगंध नहीं, बस कफारा भी नहीं। और नजर की दो हैसियतें हैं, एक मुतलक और दूसरी मुकय्यद। मुतलक ये है कि कहे मैं किसी दिन रोजा रखना अपने ऊपर वाजिब करता हूँ, और मुकय्यद ये है कि कहे अगर फलां शख्स आ जाए तो मुझ पर फलां काम वाजिब होगा। कहा किसी शख्स का गधा गुम हो गया था, उसने 3 दिन इस नियत से रोजा रखा कि उसका गधा मिल जाए। 3 दिन के बाद उसे गधा मिल गया, मगर वो मरा हुआ था। इससे उसे बहुत रंज हुआ। रंजिश में उसने आसमान की तरफ मुंह उठाया और कहा अगर इन 3 रोजों के बदले अगर मैं भी रमजान के 6 रोजे ना खा जाऊं तो मर्द नहीं, तू मुझसे कुछ ना ले जाएगा। असबाब एक पर्दा है। एक आदमी ने सवाल किया कि अत्तहजात के क्या मानी है और अस्सलात व तय्यबात क्या है। जवाब में फरमाया यानी ये कि परस्तिशें, खिदमतें, बंदगी और मरात मुझसे नहीं बजा लाई जाती, मुझे इनके लिए फुर्सत नहीं। बस ये हकीकत ठहरी कि तय्यबात और तहियात सब खुदा ही की हैं, ये मेरी नहीं, ये उसी की मलकियत है। जैसा कि बाहर के मौसम में लोग खेती बाड़ी करते हैं, सहरा में निकल आते हैं, सफर करते हैं और मकान बनाते हैं, ये सब बाहर की बख्शिश और अता है। वरना ये सब लोग जैसा के थे घरों और गारों में महबूस थे। बस दर हकीकत ये खेती बाड़ी, ये सैर तमाशा और नाजो नेमत बाहर ही की मलकियत है, और वही दिली नेमत है। इंसान की नजर असबाब पर होती है और कामों को इन असबाब का नतीजा समझा जाता है। लेकिन औलिया पर यह मुनकिशिफ हो चुका है कि असबाब एक पर्दा से ज्यादा हकीकत नहीं रखते। ये पर्दा इसलिए है कि मुसब्बिब को ना देखें और ना जाने। ये ऐसा ही है कि कोई शख्स पर्दा के पीछे से गुफ्तगू करे तो लोग समझे कि पर्दा बात कर रहा है, और वो ये ना समझे कि पर्दा मसरूफ कार नहीं, बल्कि वो तो महज एक हिजाब है। गुफ्तगू करने वाला पर्दे से बाहर आ जाए तो सब जान ले कि पर्दा एक बहाना था। खुदा के औलिया ने बगैर असबाब के काम होते भी देखे हैं, असबाब से बिल्कुल आजाद थे, फिर भी काम सर अंजाम पा गए। जैसे पहाड़ में से ऊंट निकल आया और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का असा सांप बन गया और संगे खारा से 12 चश्मे जारी हो गए, और जैसे हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बगैर किसी औजार के इशारा ही से चांद को शक कर दिया, और जैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम माँ और बाप के बगैर वजूद में आ गए, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के पैदा हो गए, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए आग
गुलो गुलजार बन गई। इस तरह के करिश्मों की कोई हद नहीं। बस जब उन्हें देखा तो समझ गए कि असबाब महज बहाना है, कारसाज कोई दूसरा है, असबाब सवाए रूपोशी के और कुछ नहीं, ताकि लोग इन असबाब ही में मशगूल रहें। ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम से खुदावंद ताला ने वादा किया कि मैं तुझे फर्जंद दूंगा। वो पुकार उठा कि मैं बूढ़ा हो चुका, मेरी बीवी बूढ़ी हो चुकी, आलाए शहवानी कमजोर हो गया है। बीवी इस हालत को पहुंच चुकी है कि बच्चा और हमल हो सकने का इम्कान बाकी नहीं रहा। ऐ खुदा, ऐसी बुढ़िया को कैसे बच्चा पैदा होगा? उसने अर्ज किया, ऐ खुदा, मेरे घर औलाद कैसे होगी? मेरी बीवी भांज है और मैं बूढ़ा हो चुका हूं। सूरह आले इमरान। जवाब आया, खबरदार ज़िक्रिया, तूने फिर सर रिश्ता गुम कर दिया। मैंने 100,000 मर्तबा बगैर असबाब के काम कर दिखाए हैं, तू उन्हें भूल गया? तू नहीं जानता कि असबाब बहाना होते हैं? मैं इस बात पर कादिर हूं कि इसी लम्हा तेरे देखते ही देखते तुझ में से 100,000 बेटे पैदा कर दूं, बगैर औरत के और बगैर हमल के। बल्कि अगर मैं इशारा कर दूं तो दुनिया में ऐसी खलकत पैदा कर दूं जो पैदाइश के वक्त ही से तमाम की तमाम बालिग और दाना हो। क्या मैंने तुझे आलम अरवाह में बगैर माँ और बाप के हस्त नहीं किया? तेरे इस वजूद में आने से पहले मैंने तुझ पर इल्ताफो इनायात की, तू उन्हें कैसे फरामोश कर सकता है? अंबिया, औलिया और नेकोबद खलाइक के अहवाल को उनके मरातिब और जौहर पर क्यास करना हो तो इसकी मिसाल ये है कि काफिरिस्तान से गुलामों को मुसलमान के मुल्क में लाते हैं और फरोख्त करते हैं। इनमें से बाज को आए 5 साल हो जाते हैं, बाज को 10 साल और बाज को 15 साल बीत जाते हैं। वो गुलाम जो बचपन में लाए जाएं और मुसलमानों के दरमियान रहकर कई साल परवरिश पाएं और बूढ़े हो जाएं, वो अपने मुल्क के हालात को बिल्कुल भूल जाते हैं। वहां की कोई निशानी उन्हें याद नहीं रहती, और जो जरा बड़े होते हैं उन्हें कुछ कुछ याद रहता है, और जो ज्यादा मजबूत और बड़े होते हैं उन्हें बड़ा कुछ याद रहता है। बिल्कुल यही हाल हुजूर बारी ताला में अरवाह का था। अलस्तो बिरब्बिकुम कालू बला, क्या मैं तुम्हारा परवरदिगार नहीं हूँ? अर्ज किया कि जरूर है। सूरह इराफ। इन अरवाह की गिज़ा और खुराक खुदा का कलाम था जो बगैर हर्फ के और बगैर आवाज के था। जब इन अरवाह में से बाज को आलम तिफली ही में इस दुनिया में ले आए और मुद्दत के बाद उन्होंने यहाँ वो कलाम सुना तो वो अहवाल उन्हें याद आए और उन्होंने अपने आप को उस कलाम से बेगाना पाया। ये फरीक बहुत महजूब है कि कुफ्र और गुमराही के गड्ढे में मुकम्मल तौर पर गिर गया। बाज को वो कलाम थोड़ा सा याद आ जाता है, वहां का जोश और वहां की ख्वाहिश उनमें जाहिर हो जाती है। ये लोग मोमिन हैं और बाज वो हैं जो इस कलाम को सुनते हैं तो उनकी नजर में वही हालत पैदा हो जाती है जो उस कदीम वक्त में थी। इनके सामने से हिजाब बकुल्ली उठ जाते हैं और उन्हें वही वसल मुयस्सर आ जाता है, और ये लोग अंबिया और औलिया हैं। नाअहल से राज की बात ना कर। हम दोस्तों को वसीयत करते हैं कि जब उनके बातिन में उरूसे मानी चेहरा दिखाए और इसरार खुलने लगे तो खबरदार वो गैरों की ये बात ना बताएं और इसकी शरह ना करें, और ये बात जो हमसे सुन रहे हैं हर किसी से ना कहते फिरें। हिकमत ना अहलों को ना दो, वरना हिकमत पर जुल्म होगा, और अहल से हिकमत को ना छुपाओ, वरना उन पर जुल्म होगा। अगर तुझे तेरी माशूका मिल जाए और वो तेरे घर में छुपी हो और वो कहे कि मुझे किसी को ना दिखाओ क्योंकि मैं तुम्हारी चीज हूं, तो तेरे लिए यह हरगिज जायज और मुनासिब नहीं कि तू उसे बाजार में फिराए और हर किसी से कहता फिरे कि इस हसीना को देखिए। अगर तू ऐसा करेगा तो ये बात उस माशूका को हरगिज पसंद नहीं आएगी कि वो उनके पास जाए, वो तुझ पर गुस्सा होगी। खुदावंद ताला ने ये इसरार की बातें उन लोगों पर हराम कर दी हैं। ये ऐसा है जैसे कि दोस्त की लोग अहले बहिश्त की मिन्नत करेंगे और कहेंगे आखिर तुम्हारा एहसान और मरवत कहाँ है? खुदावंद ताला ने जो इनामात और बख्शिशें तुम पर की हैं, अगर उनमें से आप अजराह बंदा नवाजी खैरात के तौर पर हमारे आगे भी डाल दें और इसार करें तो क्या हो जाएगा? अहले करम के प्याले में से जमीन का भी हिस्सा होता है। हम इस आतिश में जल रहे हैं और पिघल रहे हैं।
अगर बहिश्त के उन मेवों और आबहाए जलाल में से थोड़ा सा हमारी जान पर भी डाल दें तो क्या हो जाएगा। अहले दोज़ख जन्नत वालों को पुकार कर दरख्वास्त करेंगे कि जरा हमें भी पानी इनायत करो, या अल्लाह ने अपने फजल से जो रिज्क तुम्हें दे रखा है इसी में से कुछ इनायत करो। अहले जन्नत जवाब देंगे कि खुदा ने ये नेमतें काफिरों पर हराम कर दी हैं। इस नेमत का बीज दुनिया में था, चूंकि तुमने उसे वहां न बोया और न इसकी आबियारी की, और वो बीज ईमान, सिदक और अमले साले था। यहाँ अब तुम क्या लोगे? और अगर हम अज़राए करम तुम्हारे लिए इसार कर भी दें तो चूंकि खुदा ने उन्हें तुम पर हराम कर दिया है, तुम्हारे हलक जला दिए जाएंगे और ये नेमतें तुम्हारे गले से नीचे नहीं उतर सकेंगी, और तुम इन्हें थैली में डालोगे तो थैली फट जाएगी और ये गिर जाएंगे। मुनाफिकों और गैरों की एक जमात हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। सहाबा को शराए इसरार थी। उन्होंने हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदह की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर खड़े होकर सहाबा से फरमाया, अपने बर्तनों को ढांक लो, यानी अपनी सुराहियों, प्यालों, देकों और मटकों के मुंह ढांक लो और इन्हें छुपा लो कि एक किस्म के जानवर पलीद और जहरनाक हैं। ऐसा ना हो कि वो तुम्हारे कूजों में गिर जाएं और नादानी से उन कूजों में से पानी पी लें और तुम्हारा नुकसान हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह असहाब से फरमाया कि हिकमत को अगयार से पोशीदा रखो और मुंह और जुबान को गैरों के सामने ना खोलो, क्योंकि ये चूहे हैं। ये लोग इस हिकमत और नेमत के काबिल नहीं। फरमाया कि वो अमीर जो मेरे पास से उठकर बाहर गया है, अगरचे उसने हमारी बात तफसील के साथ नहीं समझी, मगर अजमाल के तौर पर वो इतना समझ गया है कि हम उसे हक की दावत देते हैं। उसकी न्याजमंदी, उसके सर हिलाने और उसकी महरो मोहब्बत को हम समझते हैं। आखिर वो दहकान जो किसी शहर में आता है, नमाज की अजान सुनता है, अगरचे वो अजान को तफसील के साथ नहीं जानता, मगर मकसद को समझ लेता है। इश्क और शौक। फरमाया कि हर एक महबूब हसीन है, मगर इसके बरक्स सही नहीं। ये जरूरी नहीं कि हर वो शख्स जो हसीन है महबूब भी हो। हुस्न महबूबियत का जुज़्व है और महबूबियत असल है। जब महबूबियत मौजूद हो तो हुस्न मौजूद होता है। किसी चीज का जुज़्व अपने कुल से जुदा नहीं, वो कुल के ताबे है। मजनू के जमाना में लैला से ज्यादा खूबसूरत हसीन मौजूद थे, मगर वो मजनू के महबूब न थे। लोगों ने एक मर्तबा मजनू से कहा, हम लैला से ज्यादा खूबसूरत हसीन तेरे पास लाते हैं। मजनू ने जवाब दिया, मैं लैला को उसकी सूरत की वजह से दोस्त नहीं रखता। लैला सूरत नहीं है, लैला मेरे हाथों में एक जाम है। मैं उस जाम से शराब पीता हूँ और तुम्हारी नजर प्याला पर है। तुम शराब से आगाह नहीं हो। अगर मेरा प्याला सोने का बना हुआ और जवाहरात से मुरस्सा हो, मगर उसमें सिरका भरा हुआ हो या उसमें शराब के अलावा कोई दूसरी चीज हो, तो वो प्याला मेरे किस काम का। हाँ, वो प्याला जो ख्वाह पुराना और टूटा हुआ हो, मगर उसमें शराब हो, उस जर्रीन प्याला बल्कि ऐसे 100 जर्रीन प्यालों से बेहतर है। इश्क और शौक चाहिए ताकि तू शराब और प्याला को अलहदा अलहदा पहचान सके। इसकी मिसाल यह है कि एक भूखे आदमी ने 10 दिन कोई चीज नहीं खाई, उसके मुकाबला में एक दूसरे आदमी ने दिन में हर रोज 5-5 मरतबा खाना खाया। अब दोनों की नजर एक रोटी पर पड़ी। सैर आदमी को वो रोटी महज एक नान की ही शक्ल में नजर आई, मगर भूखे आदमी ने उसे जान समझा। बस ये नान प्याला की तरह है और उसकी लज्जत प्याला में पड़ी हुई शराब जैसी है। इस शराब को नजरे इश्तिहा और शौक के बगैर नहीं देखा जा सकता। तू इश्तिहा और शौक हासिल कर ताकि तू सूरत भी ना रहे और कौनो मकान में तुझे माशूक ही माशूक नजर आए। दुनिया के लोग प्यालों की तरह हैं और ये उलूम व फनून और अक्ल व दानिश प्याले के नकूश हैं। तू नहीं देखता कि जब प्याला टूट जाता है तो वो नकूश नहीं रहते। बस काम की चीज वो शराब है जो इन प्यालों के कालिब में है, और जो शख्स शराब पीता है वो देखता है कि बाकी रहने वाले अमाले साले ही हैं। मसाइल के पेश नजर 2 बातें होनी चाहिए। एक ये कि उसे पूरा यकीन हो
کہ میں جو کہتا ہوں اس میں خاطی ہوں، صحیح بات اس کے علاوہ ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ جو سوچتا ہے سمجھے کہ اس سے بہتر اور اس سے بالا کوئی حکمت موجود ہے جسے میں نہیں جانتا۔ بس ہم نے سمجھ لیا کہ سوال فی نفس سے ہی آدھا علم ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا ہے ہر شخص دوسرے آدمی کی طرف رجوع حق کی غرض سے کرتا ہے، سب کا مطلوب حق ہی ہے۔ طالب حق اسی امید میں اپنی عمر صرف کر دیتا ہے، مگر ان کے درمیان تمیز کرنے والا چاہیے جو یہ جان لے کہ ان میں مصیب کون ہے، اور اس پر جو زخم کا نشان ہے وہ بادشاہ کے چوگان کا ہے، تاکہ یک گو اور موحد ہو۔ پانی میں غرق وہ ہے جس پر پانی تصرف رکھتا ہے اور اسے پانی پر تصرف حاصل نہیں۔ تیراک انسان اور غرق ہو جانے والا آدمی دونوں پانی میں ہیں، مگر غرق ہونے والے کو پانی بہا لے جاتا ہے اور وہ پانی کا محمول ہے۔ اس کے مقابلہ میں تیراک اپنی قوت کا حامل ہے اور آپ اپنے اختیار میں ہے۔ بس ہر حرکت اور ہر فعل اور قول جو غرق ہونے والے سے صادر ہوتا ہے پانی کی طرف سے ہے، اس کا اپنا نہیں، وہ درمیان میں محض ایک بہانہ ہے۔ یہ ایسا ہی ہے کہ تو دیوار سے بات سنے، تو جانتا ہے کہ بات دیوار نے نہیں کی، کوئی ہے جس نے دیوار کو بولنے پر آمادہ کیا ہے۔ اسی طرح اولیاء موت کے آنے سے پہلے ہی مردہ ہیں اور در و دیوار کا حکم بجا لائے ہوئے ہیں، ان میں سرے منہ زندگی باقی نہیں رہی۔ دست قدرت میں یہ صفر کی مانند ہے، صفر کی حرکت صفر کی مرضی سے نہیں ہوتی اور انا الحق کے معنی یہی ہوتے ہیں۔ صفر کہتی ہے میں درمیان میں نہیں ہوں، حرکت خدا کے ہاتھ سے ہے، اس صفر کو خدا دیکھتا ہے، اور خدا سے پنجہ آزمائی نہ کرو، کیونکہ جنہوں نے اس صفر کو زخمی کیا ہے در حقیقت انہوں نے خدا سے جنگ کی ہے اور اپنے آپ کو خدا پر دے مارا ہے۔ تو سنتا ہے کہ آدم سے لے کر آج تک ان پر کیا گزری، فرعون، شداد، نمرود، قوم لوط اور سمود سے لے کر اس وقت تک جس کی کوئی انتہا نہیں، وہ ایسے اسی پر قیامت تک موجود ہے، ایک دور کے بعد دوسرے دور میں۔ بعض دفعہ یہ صفر انبیاء کی صورت میں اور بعض دفعہ اولیاء کی شکل میں ہوتی ہے، تاکہ متقی لوگ شکی القلب لوگوں سے ممتاز ہوں اور اولیاء دشمنوں سے۔ بس ہر ولی خلقت کے لیے حجت ہے، خلقت اس سے جس قدر تعلق پیدا کراتی ہے اس کے مطابق خلقت کا مرتبہ اور مقام متعین ہوتا ہے۔ اگر خلقت اس سے دشمنی کرے تو گویا اس نے وہ دشمنی خدا سے کی، اور اگر وہ اس سے دوستی کرے تو اس کی یہ دوستی خدا سے ہوگی، کیونکہ جس نے اسے دیکھا مجھے دیکھ لیا، جس نے اس کا قصد کیا اس نے میرا قصد کیا۔ خدا کے بندے اللہ کے رازوں کے محرم ہیں، جیسا کہ خداوند تعالیٰ کے خادموں نے ہستی کی تمام رگوں، شہوت اور خیانت کے بیجوں کو مکمل طور پر کاٹ ڈالا ہوا ہے اور پاک کر دیا ہے، تو بالضرور وہ ایک دنیا کے مخدوم ہو گئے ہیں اور محرم اسرار بن چکے ہیں۔ پاک لوگوں کے سوا اسے کوئی ہاتھ نہ لگائے۔ فرمایا اگر بزرگوں کے مزار کی طرف پیٹھ پھیر رکھی ہے لیکن یہ انکار اور غفلت کی وجہ سے نہیں، تو سمجھو کہ ساری توجہ انہی کی روح کی طرف ہے، اس لیے کہ یہ بات جو میرے منہ سے نکلتی ہے یہ انہی کی طاقت سے ہے۔ اگر ان کے جسم کی طرف پیٹھ پھیر لیں اور ان کی جان کی طرف منہ کر لیں تو اس میں نقصان نہیں۔ شاعری سے بیزاری۔ مجھے عادت ہے، میں نہیں چاہتا کہ مجھ سے کوئی دل آزردہ ہو۔ یہ جو ایک گروہ نے سما میں میرے سامنے گانا شروع کر دیا اور بعض دوستوں نے اسے منع کیا تو مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ میں 100 دفعہ کہہ چکا ہوں کہ میری خاطر کسی سے کچھ نہ کہو، میں اسی سے راضی ہوں۔ میں اس حد تک دلداری کرتا ہوں کہ وہ دوست جو میرے پاس آتے ہیں اس خوف سے کہ وہ ملول نہ ہوں میں شعر کہتا ہوں تاکہ ان کی توجہ لگی رہے، ورنہ کہاں میں اور کہاں شعر۔ خدا کی قسم میں شعر سے بیزار ہوں، اس سے بری چیز میرے نزدیک کوئی نہیں۔ یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی شخص مہمان کی اشتہا کے لیے کیسا میں ہاتھ ڈالے، اسے ہلائے اور دھوئے۔ چونکہ مہمان کی اشتہا قسم سے ہے اس لیے یہ لازم ہوا۔ آدمی دیکھتا ہے کہ فلاں شہر میں خلقت کو کون سا سامان چاہیے اور کس سامان کے خریدار موجود ہیں، اس ضرورت کے مطابق ہی آدمی سامان خریدتا اور بیچتا ہے، خواہ وہ سامان گھٹیا قسم کی متاع ہی کیوں نہ ہو۔
میں نے علوم کی تحصیل کی اور اس میں تکالیف اٹھائیں تاکہ فضلا، محققین، زیرک اور دقیقہ رس لوگ میرے پاس آئیں اور میں انہیں نفیس اور نایاب اشیاء پیش کروں۔ خود خدا نے یہی چاہا، اس نے سب علوم کو یہاں جمع کر دیا اور ان سے متعلق تکالیف بھی یہاں لے آیا تاکہ میں اس کام میں مشغول ہو جاؤں۔ میں کیا کر سکتا تھا؟ میرے ملک اور میری قوم میں شاعری سے زیادہ باعث ننگ کوئی کام نہ تھا۔ اگر ہم اس ملک میں رہتے تو وہاں کی طبع کے مطابق زندگی بسر کرتے اور وہی کچھ کرتے جو وہاں کے لوگ چاہتے، جیسے درس دینا، کتابیں تصنیف کرنا، ذکر و واعظ کرنا اور زہد و عمل کو ظاہراً طور پر بروئے کار لانا۔ السلام علیکم۔ پوری کتاب دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل صوفی سما کی پلے لسٹ میں جائیں۔ یہاں آپ کو مختلف بزرگوں کی کتابیں ملیں گی اور جو کتاب پوری نہ ہوئی اس پر کام تیزی سے ہو رہا ہے اور ریگولر بیسس پر اپلوڈ ہوتی رہتی ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل نوٹیفیکیشن پر کلک کر لیں تاکہ ہماری آنے والی کتابیں آپ کو ملتی رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔